Today, in the subject of the intellectual property right, we will discuss about the syllabus of the unit second. We will revise the Patent Amendment 1919. जो पेटेंट एक्ट 1970 था, कल जो डिस्कस किए थे, वो आपका माइलस्टोन है इंडिया में। उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो उसमें कमियां थी, वो जरूरत के मुताबिक, इंडिया कंट्री के मुताबिक उसमें संशोधन किया गया, जिससे कि यहाँ के इंडिया के पॉपुलेशन को वो फायदा हो। तो इसमें पेटेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द 1919, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड, रजिस्ट्रेशन एंड द प्रोटेक्शन एक्ट 1919, ये उसका मेन टाइटल है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो पहले शामिल नहीं था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को शामिल किया गया, जिससे इंडिया के लोगों को फायदा हो। Until recently, geographical indication were not registrable in India. ये पहले registrable इंडिया में नहीं था, in the absence of the statutory protection. Absence of the statutory protection, ये आपको registrable नहीं था। Indian geographical indication have misused by the person outside India to indicate goods of the originating from namely locally in India. जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बाहर में मिसयूज किया जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए दे आर द G7 कंट्री आर द पावरफुल कंट्री, उसके द्वारा मिसयूज किया जा रहा था। तो उसको रोकने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को शामिल किया गया। उसमें पेटेंटिंग द टर्मरिक का पेटेंटिंग, नीम एंड बासमती आर द इंस्टांसेस which drew of the lot of attention toward the aspects of the intellectual property. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उसका अटेंशन है, ये टर्मरिक को, नीम को, बासमती को वो करने के लिए ऐसा किया गया। Mention should be made that under the agreement on the trade related aspect of the intellectual property right, there is no obligation for further country to expand reciprocal protection unless a geographical indication is associated in the country of its origin. है ना? तो India did not have such a specific law governing the geographical indication of the good. India के पास कोई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स के बारे में कोई ऐसा लॉ नहीं था which could adequately protect the interest of the producer of the such goods, जो कि ये सारी गुड्स का प्रोटेक्शन में काम किया जा सके। To cover up such situation, it became necessary to have a comprehensive legislation for the registration and providing adequate protection to the geographical indication, and according the Parliament has passed a legislation, namely Geographical Indication of the Good Registration Protection Act 1999। पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन बनाई एडेक्वेट प्रोटेक्शन के लिए, और द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1919 ये पास किया। द लेजिस्लेशन is administered through the geographical indication registry under the overall charge of the Controller General of the Patent, Design and the Trademarks. The silent features of these legislation are as under provision of division of the several important types like geographical indication, goods, producer, packages, registered proprietor, authorized user, ये सारे उसमें प्रोविजन किया गया। इसमें जो फीचर्स थे, 14 फीचर्स हैं, जो आपको अमेंडमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या साइलेंट फीचर इस लेजिस्लेशन में आपको 99 में किया गया है।
है ना? तो प्रोविजन ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेवरल इंपॉर्टेंट टाइप टर्म्स लाइक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, गुड्स, प्रोड्यूसर्स, पैकेजेज, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, ऑथराइज्ड यूजर, ये किया गया. Provision for the maintenance of a register of the geographical indication in two parts, Part A and Part B, use of the computers for maintenance of the such register. While a Part A will contain all registered geographical indication, Part B will contain particular of the registered authorized user. Number 3, registration of the geographical indication of the goods in the specified classes. Number 4, प्रोविजन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सर्टेन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. इसके बारे में आपको प्रोविजन दिया गया. प्रोविजन फॉर फ्रेमिंग ऑफ रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, इट्स कंटेंट एंड मैटर्स रिलेटिंग टू द सब्सटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एप्लीकेशन. कंपल्सरी एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एप्लीकेशंस एंड फॉर नॉट इनवाइटिंग ऑब्जेक्ट्स. ये आपको नंबर 6 में आपको ये किया गया. तो ये जो आपको जो भी रूल्स था ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का रिलेटेड, वो जो है 99 में आपको शामिल किया गया है ना. रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑथराइज्ड यूजर ऑफ द रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर टेकिंग इन्फ्रिंजमेंट एक्शन आइदर बाय रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑन एन ऑथराइज्ड यूजर, ये आपको किया गया. प्रोविजन फॉर हायर लेवल ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द नोटिफाइड गुड्स, ये आपको किया गया. प्रोविजन ऑफ द असाइनमेंट एक्सेट्रा ऑफ ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एज इट्स पब्लिक प्रॉपर्टी, ये किया गया. प्रोविजन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एज ए ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एज ए ट्रेडमार्क, ये किया गया. Appeal against registrar decision would be to the intellectual property board established under the trademark legislation, ये आपको क्या है. Provision relating to the offenses and penalties, ये आपको क्या है. Provision detailing the effects of the registration and the rights conferred by the registration, ये आपको क्या है. Provision for the responsive power of the registrar, maintenance of the index, protection of the होमोजेनियस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये आपको किया गया. तो ये 14 आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड आपको लॉ में इंक्लूड किया गया. जो अमेंडमेंट किया गया 1970 का जो एक्ट था, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड जितने भी रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑथराइज्ड यूजर, प्रोविजन ऑफ द हायर लेवल ऑफ द प्रोटेक्शन, प्रोविजन ऑफ द असाइनमेंट, public property, provision of the registration, appeal against the registrar of the intellectual property, establishment of the trademark registration, provision relating to the offense and penalty, provision dealing with the effects of the registration, provision for respective power of the registrar, ये सारे रूल्स को चेंज किया गया. ये आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स से रिलेटेड, इसका नाम ही है द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1990. ये पार्लियामेंट में ये लेजिस्लेशन आपको पास किया गया और ये आपको क्लियर किया गया उसके बारे में. दूसरा पेटेंट अमेंडमेंट है, वो 2000 में किया गया. The Design Act 1919 has been replaced by the Design Act 2000 in view of the considerable progress made in the field of the science and technology. A need was felt to provide more efficient legal system of the protection of the industrial design in order to ensure effective protection to register design and to encourage design activity to promote the design element in an article of the production. In this backdrop, the Design Act 2000 has been enacted essentially to balance these interests and to ensure that the law does not unnecessarily extend protection beyond what is necessary to create the required incentive for the design activity. इसमें इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट किया गया है, वो अमेंडमेंट किया गया है डिजाइन एक्ट 1911 को.
वो रिप्लेस किया गया डिजाइन एक्ट 2000 से अमेंडमेंट करके डिजाइन एक्ट को रिप्लेस किया गया। तो मोर लीगल सिस्टम ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये इफेक्टिव प्रोटेक्शन रजिस्टर्ड डिजाइन, ये आपको किया गया। डिजाइन एक्ट 2000 हैज बीन इनेक्टेड एसेंशियली टू बैलेंस दीज इंटरेस्ट, ये आपको किया गया। द रिक्वायर्ड इंसेंटिव फॉर द डिजाइन एक्टिविटी व्हाइल रिमूविंग impediments to the free use of the available design. The new act complies with the requirement of the TRIPS and hence it directly relevant both the international treaty. Industrial design law deals with the aesthetics or the original design of an industrial product. An industrial product usually contains elements of both art and craft. That is to say, artistic as well as a functional element. The design law excludes from its purview that the functioning feature of an article and grant protection only to those which have an aesthetic appeal. For example, the design of the teacup must have a hollow receptacle for the holding tea and a handle to hold the cup. These are functional features that cannot be registered, but a fancy shape for the ornamentation only to be registerable. Similarly, a table, for example, would have a flat surface on which other objects can be placed. This is the functional element, but the shape, color, or the way it is supported by legs or otherwise are the elements of the design or artistic element and therefore registerable. This is the novel. Today, industrial design has become an integral part of the consumer culture, where rival articles compete the consumer attention. It has become important, therefore, to grant to an original industrial design adequate protection. It is not always easy to separate the aesthetics of the finished article from its function. However, requires that it is only the aesthetics or the design element which can be registered and protected. For example, while designing furniture, whether for export or otherwise, when one copies design from a catalog. Particularly, while exporting furniture, it is necessary to be sure that the design of furniture is not registered either as a patent or design in the country of the export. Otherwise, the exporter may get involved in unnecessary litigation and may face claims for the damage. Conversely, if furniture of the ethic design is being exported and the design is an original design complying with the requirements of the definition of the design under the Design Act, it would be worthwhile having it registered in the country to which the product is being exported. And the silent feature of the Design Act 2000, ये मेनली डिजाइन एक्ट है जो आपको डिजाइन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट 1911 को चेंज करके डिजाइन एक्ट 2000 आपको किया गया। तो इस केस में enlarging the scope of definition of the terms, articles, design and introduction of the definition of the original, ये प्रोवाइड किया गया। amplifying the scope of the period publication, इसके बारे में बताया गया। introduction of the provision of delegation of the power of the controller to other officers stipulating statutory duty of the examiner. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पावर ऑफ कंट्रोलर को कितना पार्ट है, उसके ऑफिस को कितना पावर है, इसके बारे में डेलीगेट किया गया। इसको बताया गया कि कितना पावर है। प्रोविजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेबल डिजाइन, ये आपको किया गया। प्रोविजन फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डिजाइन, ये आपको किया गया। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन क्लासिफिकेशन बाय इंटरनेशनली फॉलोड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, ये किया गया। प्रोविजन फॉर इंक्लूजन ऑफ ए रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड ऑन कंप्यूटर एज ए रजिस्टर ऑफ द डिजाइन, ये आपको किया गया। प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द लैप्स डिजाइन, ये आपको किया गया। प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर बिफोर द हाई कोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपको किया गया। रिवोकिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द सेक्रेसी ऑफ 2 years ऑफ ए रजिस्टर्ड डिजाइन, ये आपको किया गया। प्रोवाइडिंग फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एन डॉक्यूमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट इन द रजिस्टर्ड डिजाइन, ये आपको किया गया। Introduction of the additional ground in cancellation of the proceedings and provision for initiating the cancellation proceeding before the controller in the place of the High Court, ये किया गया। Enhancement of the quantity of penalty imposed for the infringement of a registered design, ये आपको किया गया।
provision for the grounds of the cancellation to be taken as a defense in the infringement proceeding to be any court not below the court of the district judge, ये आपको किया गया. Enhancing the initial period of the registration from 5 to 10 years to be followed by the further extension of the 5 years, ये आपको किया गया. Provision for allowance of priority to other convention country and country belonging to the group of country or intergovernmental organization apart from the United Kingdom and other Commonwealth country, ये आपको provision किया गया convention country के साथ में belonging to the group of the country, intergovernmental organization from the United Kingdom और other Commonwealth country के साथ में ये आपको provision किया गया. Provision for avoidance of the certain restrictive condition for the control of the anti-competitive practices in the contractual licenses, ये आपको किया गया. ये 17 फीचर्स आपको डिजाइन एक्ट 2000 में आपको शामिल किया गया, जो कि डिजाइन एक्ट 1911 में आपको बना था, उसको रिप्लेस किया गया डिजाइन एक्ट 2000 से. और जो डिजाइन के बारे में, इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में आपको जो आपको साइलेंट फीचर्स है डिजाइन एक्ट 2000 का, वो आपको यहाँ पर जो साइलेंट फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर आपको साइलेंट फीचर्स वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ना. ये आपको नॉन रजिस्ट्रेबल डिजाइन है. प्रोविजन फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एप्लीकेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डिजाइन है, ये आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है. रिवोकिंग ऑफ द पीरियड ऑफ सेक्रेसी ऑफ 2 years ऑफ ए रजिस्टर्ड डिजाइन है, ये आपको बताया जा रहा है. और इंट्रोडक्शन ऑफ द एडिशनल ग्राउंड इन कैंसिलेशन, ये आपको बताया जा रहा है. इनहांसमेंट ऑफ क्वांटम ऑफ द पेनाल्टी इम्पोज फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड डिजाइन, ये आपको बताया जा रहा है. तो ये जो है डिजाइन एक्ट 2000 आपको बना हुआ था, है ना. तो ये आपको 17 इसमें फीचर्स हैं. 17 फीचर्स के बारे में आपको मैंने आपको क्लियर किया. डिजाइन इसका पैटेंट अमेंडमेंट ऑफ द 2000, ये आपको जो जो अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट्स आपको जो जो फीचर्स हैं वो आपको यहां पर आपको बताया गया है ना. तो दूसरा है ज्यादा करना भी ठीक नहीं है. 2 अमेंडमेंट तो मैंने अभी आपको बता दिया. एक तो 2000 का 2000 में अमेंडमेंट हुआ था. दूसरा आपको 1919 में जो अमेंडमेंट हुआ था. ये दोनों एक अमेंडमेंट के बारे में मैंने आपको क्लियर आइडिया दिया कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं. ये फीचर्स के बारे में आपको दिया हुआ है ना. ये फीचर्स के बारे में आपको दिया हुआ है ना. पेटेंट अमेंडमेंट ऑफ द 2000, ये आपको यहां पर दिया हुआ है. ये पेटेंट अमेंडमेंट डिजाइन एक्ट 2000, उसमें आर्टिकल शब्द को, डिजाइन शब्द को, इंट्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल, ये आपको दिया गया. पीरियड पब्लिकेशन को बताया गया. डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ द कंट्रोलर बताया गया. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेबल डिजाइन बताया गया. नेटवर्क में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसीलिए वो कट जा रहा है. पहले मैं आप सभी का अटेंडेंस जो है वो अटेंडेंस मैं अभी पहले आपका ले लूं.
अभिषेक दुबे जी 02, अंकित शर्मा जी 06, चंदन शाह जी 08, नंदिनी जी 29, हिमांशु जी 17, हिमांशु पुंडीर जी 18, हृदय जी 19, जैनेश चौहान जी 22, कार्तिक प्रासर जी, हिमांशु जी 17, हिमांशु पुंडीर जी 18, हृदय जी 19, जैनेश चौहान जी 22, कार्तिक प्रासर जी, जितेंद्र राणा जी 23, जितेंद्र राणा यस सर, प्रेजेंट। हाँ यस सर। पवन नेगी जी 30, हाँ सर। अच्छा, अटेंडेंस ले रहे हो सर आप? हाँ राहुल चौधरी जी 33, ऋषभ नायक जी 54। 15 पार्टिसिपेंट्स हैं। ऋषभ नायक जी 54, राहुल सर 16 चौधरी। है सर। हाँ बताइए। लगा दी सर, राहुल 32। हाँ राहुल जी का लग गया है, राहुल जी का 32। ठीक है सर, ठीक है। ऋषभ नायक जी 54, राहुल चौधरी जी 33, पवन नेगी जी 30, कार्तिक प्रासर जी, जैनेश चौहान जी 22, हृदय जी 19, हिमांशु पुंडीर जी 18, हिमांशु जी 17, राहुल ठाकुर जी 32, नंदिनी जी 29, चंदन शाह जी 8, अंकित शर्मा जी 6, अभिषेक दुबे जी 2, जितेंद्र राणा जी 23। हाँ सर। यस सर। हाँ ये सारे प्रेजेंट है। तो अभी 2 अमेंडमेंट्स मैंने आपको क्लियर किया। और हाँ सर। दूसरा, आप असाइनमेंट्स को जमा कीजिए, क्योंकि अब असाइनमेंट कुछ स्टूडेंट्स ने जमा किए हैं, लेकिन वो कॉलेज जो है एक्सेल सीट भेज रहा है। एक्सेल सीट में असाइनमेंट किसने करा है नहीं करा है, एमसीक्यू टेस्ट। तो असाइनमेंट आपकी उसको कीजिए और जल्दी से जल्दी जो है उसको जमा कीजिए। और दूसरा, थर्सडे को आपको ईआईटीके का एमसीक्यू टेस्ट होगा। तो फिर भी आगे तो बाय चांस हाफ डे आगे तो थर्सडे को आपको ईआईटीके का एमसीक्यू टेस्ट होगा। जो नेसेसरी टेस्ट है वो 5 टेस्ट कह रहे हैं, तो 5 टेस्ट जो है लेना है, तो वो जो है उसको कंप्लीट करना है। और दूसरा, असाइनमेंट आप कीजिए, वो जरूरी है। सारे स्टूडेंट्स असाइनमेंट करेंगे तो आपका जो इंटरनल में भी मार्क्स आपका बेटर आएगा, और एक्सटर्नल में भी जो मार्क्स है वो भी काफी आपको इंप्रूव हो जाएगा, काफी आपको सुधर जाएगा, है ना। तो 2 अमेंडमेंट्स मैंने आपको कराया, इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। 1919 में क्या था? 1919 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स ही नाम था उसका। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स पहले इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होता था, जिसके कारण जो बाहर के कंट्री थे, आउटसाइड कंट्री थे, वो यहाँ के ओरिजिन का फायदा उठाते थे। वो यहाँ का पैटेंट मंगा करके उसका फायदा उठाते थे। तो उसको रोकने के लिए इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स को शामिल किया गया। उसमें आपको टर्मरिक, नीम, बासमती, ये सारे चीजें के बारे में आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज किया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज किया गया। दूसरा, ट्रिप्स में आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में नहीं था कि उसमें जो जहां से ओरिजिन हुआ है उसके बारे में प्रोविजन था, ये आपको नहीं था। तो आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन पास किया
geographical indication of the good, registration of the protection Act 99, और ये अमेंडमेंट हेलो हाँ बताइए। हेलो हाँ बताइए। सर, आकाश पन्वर बुक पनवर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अटेंडेंस लगवा दो सर। आकाश जी, आपका रोल नंबर कितना है? 03। 03 लग गया है। ठीक है, हाँ लग गया। आकाश पवार ओके जी, सर। 03 आपका लग गया। तो ये लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में 99 में आपको पास किया गया, जिससे कि जो ओरिजिन जहां का है, इंडियन ओरिजिन का, वो उसमें आपको क्लियर किया गया। तो जो साइलेंट फीचर्स जो लेजिस्लेशन का था, ये यहां पर दिया हुआ है। प्रोविजनल ऑफ डिफिशन ऑफ द सेवरल इंपोर्टेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, गुड्स प्रोड्यूसर, पैकेजेज, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, ऑथराइज्ड यूजर, ये आपको दिया गया। प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ऑफ ए रजिस्टर of a geographical indication in the two parts, part A and part B, use of computer, ये आपको दिया गया। For maintenance of the such register, part A contain all registered geographical indication, part B will contain particulars of the register authorized user, registration of the geographical indication of the good in specified classes, ये आपको दिया गया। Provision of the registration of the certain geographical indication, ये आपको दिया गया। प्रोविजन ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ये आपको किया गया।